talk about hemisphere of the earth. So this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. And what is the topic that we are going to discuss today? The topic is summer and winter solstice. What is the summer solstice and what is the winter solstice? So beta, I startingly tell you about this thing that day and night causes due to the rotation of the earth, and season changing is caused due to the revolution of the earth. Okay, revolution means what? When there is sun. This is what? This is sun. And when earth revolves around the sun, so this is called revolution. And when earth moves around its axis, this is called rotation. So revolution is causes for the season changing and rotation is causes for day and night. So on earth there is day and night. So there is an imaginary line which is used to determine about day and night. Imaginary line which determine day and night. Where is day and where is the night? So that circle, that point of the earth is known as circle of illumination. It means you can say that there is an imaginary line which divides earth into two parts, night and day. So day and night is determined by a line and that line is known as circle of illumination. Is it clear? Okay beta, as I told that there is earth and this is the center of the solar system and center of the earth orbit also. So earth revolves around the sun in elliptical orbit. This is orbit. This is in the shape of the elliptical. So earth revolves around the sun in elliptical orbit, and because of this revolution there is the season changing. What? There is season changing. So beta, there is mainly two season on the earth: winter season and summer season. Winter season and summer season. So in summer solstice there is two things that we understand about the season regarding the revolution of the earth. So beta, what? This is the time of the 21st June. This time period is known as the summer solstice. And also we feel summer in the month of June. This is the month of June. We feel some hot, we feel what? Hot. But in month of December we wear what? We wear sweater, we wear scarf and cap to protect ourselves from the winter, from the cold wind. But in the month of June we don't need to do like that. Only we wear shirt. Okay, that's all, because we feel hot. So beta, India is located in northern hemisphere. So in the month of June, northern hemisphere feels hot, while southern hemisphere feels winter. Is it clear? Question will be asked. What happens in summer solstice? You have to say there is summer in northern hemisphere and there is winter in southern hemisphere. In 21st June, in the month of June. So this is called summer solstice. Is it clear? Next question. What will be happen? What will be happen in winter solstice? So beta, what is winter solstice? So in winter solstice, it means in southern hemisphere there is winter and sorry, in northern hemisphere Good morning, my dear students. Just I am going to explain about the motion of the earth. What? The motion of the earth. So beta, first thing, this is what? This is globe. And globe is what? Globe is the true model of the earth. When we talk about the rotation of the earth, firstly we have to think about say, this is what? This is earth. क्या है? अर्थ है. अर्थ एक हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होती है. तो बेटा हमारे पास ये जो होता है नॉर्थ पोल है, साउथ पोल होता है. इट मींस दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज
अर्थ होता है वो रोटेट करता है। रोटेट क्या होता है? तो बेटा जो हमारे पास ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक, जिसको एक्सिस कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है, इस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ इस तरह से मूव करता है, ठीक है। एक्सिस के चारों तरफ क्या करता है? मूव करता है। तो बेटा इस मूविंग को ही हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। यू कैन से दैट व्हेन अर्थ रोटेट, when earth moves around its axis, this is called rotation, and day and night causes due to the rotation of the earth। पृथ्वी पे दिन और रात होता है, उसका रीजन क्या है? तो बेटा ये रोटेशन है। कैसे है? तो बेटा देखो हमारे पास ये लाइट है ना, ये मान लो सनलाइट है, सनलाइट इस पर पड़ रहा है, तो बेटा आप देखो इसके बैक साइड क्या है? शैडो बन गया, यानी कि इसने लाइट को आधा ब्लॉक कर दिया। तो बेटा हमारे पास मान लो कि क्या है, ये आपका अर्थ है, तो आप देख लो यहाँ पे आपका इंडिया है, तो बेटा इंडिया में क्या है आपका अभी डे है। अब जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो अब इंडिया क्या हो गया? इसके बैक साइड में आ गया, बैक साइड में आ गया, यानी कि लाइट को ब्लॉक कर दिया, यानी कि यहाँ पे रात हो गया। अब धीरे 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 ये डे हो रहा है, डे होते 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 प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा? फिर आफ्टर मूविंग विद इवनिंग, इवनिंग के बाद फिर ये नाइट। इस तरीके से डे एंड नाइट जो होता है बेटा हमारे पास क्या होता है? वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट we will discuss about the revolution of the earth. Revolution means what? Suppose that there is sun which is the center of the solar system and earth is a planet which revolves around the sun. It means suppose that this is sun, sun is fixed, it can't move, okay, and this is earth. So earth what? Earth rotates, and while rotating it revolves around the sun. So this phenomena is known as what? This is called revolution. When earth moves around the sun, it is fixed orbit, and this moving around the sun is called revolution of the earth. Revolution of the earth means what? जब हमारे पास सन के चारों तरफ पृथ्वी इसी जो ये लाइन है ना, ये जो कक्ष है, जो ऑर्बिट कहते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और बेटा रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजन चेंजिंग होती है, यानी मौसम परिवर्तन होता है। अब बेटा एक और पॉइंट है कि हमारे पास सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक ऐसा हमारे पास पृथ्वी पर पॉइंट होता है जिससे पृथ्वी पर दिन और रात को हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स, डे पार्ट एंड नाइट पार्ट। इट मींस अर्थ कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नाइट पार्ट, डे पार्ट। सो नाइट एंड डे इज डिटरमाइंड बाय विच लाइन? Circle of illumination. Circle of illumination is a line which divides Earth into two parts, and with the help of this line we can understand here is day and here is night. तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है बेटा? पृथ्वी पर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे पास आगे वाले पोर्शन में क्या है? डे है, और पीछे वाले में क्या होगा? नाइट होगा। क्लियर कि बेटा हमारे पास सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? पृथ्वी बेटा अपने एक्सिस में 23 डिग्री झुकी हुई है, अर्थ tilted towards its axis on 23.5 डिग्री, और इसी की वजह से बेटा हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 6 मंथ का डे होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में 6 मंथ की नाइट होती है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में 6 मंथ की डे होगी तो नॉर्थर्न में 6 मंथ का नाइट होगा। देखो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं समर एंड विंटर सोल्स्टिस क्या होता है। तो बेटा ये हमारे पास इलिप्टिकल शेप है, ठीक, ये इलिप्टिकल शेप किसका है? अर्थ ऑर्बिट का है। तो अर्थ ऑर्बिट की शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट? द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, ओके। दीज आर सम पॉइंट्स। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होता है बेटा? इक्विनॉक्स हमारे पास पूरे पृथ्वी पर ऐसे 2 दिन होते हैं जो डे, जहां पर डे एंड नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यू कैन से दैट अर्थ इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, अर्थ इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, and that is called equinox, okay. So what are the date of the equinox? हमारे पास पृथ्वी पर डे एंड नाइट जब इक्वल होता है, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का जब रात होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स हमारे पास कब से कब तक होता है? तो बेटा हमारे पास ये 21 मार्च और हमारे पास ये क्या है? आपका 23 सितंबर है। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर द 2 डेट्स ऑन अर्थ इट्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इज इट क्लियर? और उसके बाद बेटा हमारे पास समर एंड विंटर सोल्स्टिस क्या होता है? तो समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस बोथ आर द वेरी सेम थिंग, बट सिमिलर भी है और अपोजिट भी है। कैसे बेटा? आप देखो हमारे पास ये क्या है?
21st जून समर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस मतलब क्या होता है कि बेटा ये 21st जून के महीने में क्या होता है, हमको गर्मी लगती है, और हमको गर्मी लगती है यानी कि इंडिया में गर्मी पड़ती है। इंडिया में गर्मी पड़ती है, इसका मतलब कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है बेटा कि हमारे पास जब अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं इक्वेटर के द्वारा, इक्वेटर क्या होता है कि इक्वेटर हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है, एक ऐसा सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है विच डिवाइड अर्थ इनटू इक्वल हाफ। द अपर from equator to north pole is called northern hemisphere, from equator to south pole is called southern hemisphere। तो बेटा हमारे पास जब नॉर्थ साइड में पूरी ठंडी पड़ेगी तो हमारे पास साउथ में गर्मी, और जब नॉर्थ में गर्मी पड़ेगी तो साउथ साइड में ठंडी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो बेटा हमारे पास नॉर्थ में इंडिया है, नॉर्थ में इंडिया है तो इंडिया में गर्मी कब पड़ती है, तो जून के महीने में पड़ती है। तो यू कैन से दैट on 21st June there is the summer solstice when northern hemisphere of earth is summer, in same time southern hemisphere is winter। यानी कि 21st जून को अगर नॉर्दर्न में समर है तो साउदर्न में क्या होगा, विंटर होगा। एंड द सेम थिंग ऑफ एंड द अपोजिट ऑफ द थिंग्स इन विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर सॉल्स्टाइस में क्या होता है, तो विंटर सॉल्स्टाइस में बेटा ये होता है कि 22 दिसंबर को जब हमारे पास साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, दिसंबर के महीने में ठंड होती है ना, जब हम स्कार्फ, स्वेटर, जैकेट, बूट जबरदस्त तरीके से पहनते हैं। एंड व्हाई वी आर वी वांट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड विंड, ठंड की हवाओं से बचने के लिए। तो बेटा वो हमारे पास दिसंबर का समय होता है क्या, ठंड का महीना, ठीक है। तो ठंड का महीना हमारे पास इंडिया में कब होता है, तो दिसंबर जनवरी। यहाँ पे 22 दिसंबर लिखा है, तो बेटा से 22 दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टाइस होता है। विंटर सॉल्स्टाइस मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर और साउदर्न में क्या होगा, समर। तो बेटा 22 दिसंबर मतलब अप्रॉक्स 25 दिसंबर। तो बेटा हम लोग इंडिया में 25 दिसंबर क्रिसमस डे कब मनाते हैं, तो ठंड के मौसम मनाते हैं। वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे ऑन द 25th ऑफ दिसंबर इन विंटर सीजन। बट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर कब मनाया जाता है, तो बेटा ऑस्ट्रेलिया हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, तो वहां पर जो क्रिसमस डे है वो गर्मी में मनाया जाता है। अगर हम जो भी फेस्टिवल, अगर हमारे इंडिया में अगर ठंड पड़ रही है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ी तो साउदर्न में क्या होगा, आपका विंटर। अगर हमारे यहाँ विंटर है तो साउदर्न में क्या होगा, समर। तो ये हमारे पास फिनोमेना होता है जिसी को हम कहते हैं आपका समर एंड विंटर सॉल्स्टाइस। तो समर एंड विंटर सॉल्स्टाइस, यू वेट द पॉइंट व्हाट इज द समर सॉल्स्टाइस एंड व्हाट इज द विंटर सॉल्स्टाइस। तो बेटा जो आपका अर्थ, आप ये मत सोचो अर्थ रोटेट हमारे पास पर्टिकुलर ऐसे कर रहा है। अर्थ हमारे पास एक साथ दो मोशन करता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन अपने एक्सिस पे करता है, जब रेवोल्यूशन हमारे पास रोटेशन स्टार्ट है और रोटेशन के साथ ये ऐसे अपना रिवॉल्व करता है यानी कि रेवोल्यूशन भी करता रहता है। तो इस पॉइंट इज दिस क्लियर? I hope all of you get the point. Okay? Okay, beta. Thank you.